Sangeeta Gupta, ma'am, she is not just an academician, but also she is known in the realm of administration as an Iron Lady. She is known for her great elan and panache. Professor Sangeeta Gupta, currently principal, Swami Vivekanand Government PG College, Lohaghat, Uttarakhand, is a force to reckon with when it comes to academics, when it comes to administration. Her academic career spans across 38 long, impressive years, and till date, she has been an asset to higher educational institutions. At the same time, we say that in the coming future, we are soon to witness her as a very tall person, that is, as Director Higher Education, Uttarakhand. So, many congratulations, ma'am, in advance from the entire academic fraternity for being the person that you are. Indeed, we are blessed to have you with us, dear ma'am. As far as her academic trajectory is concerned, she possesses PhD in economics and has worked on the economic impact of water pollution and Ganga Action Plan in Uttar Pradesh. Her research areas include environmental economics, microfinance, women issues, rural development, to say a few. To her credit goes the publication of two books. She has organized myriad national, international conferences, seminars, symposiums, workshops, and is still, and there are still many in the pipeline. Further, she is affiliated as a prestigious lifetime member in various professional bodies and possesses rich administrative experience. Presently, she is patron and principal, Government PG College Lohaghat. She has been in the past been officiating principal Bidya Sen. She was also in charge of sports committee, culture committee, UGC cell. She has been uh, she's been at the Herald in many other communities, in many other uh, authorities as well. Like she's been coordinator IQAAC, NAAC, NAC, Alumni Association. She's been an active member of the administration of the admission committee, the college member committees, placement cells. She's also been Lok Suchna Adhikari and Sahayak Lok Suchna Adhikari. When it comes to other capacities, she's served in PG College Ramnagar, whereby she was chief proctor and convener admissions PG for economics. She's been the chief editor for the newsletter Batyayan as well. So we have a lady with multifaceted and a multidimensional personality with us, and we are very blessed to have you, ma'am, here. Many congratulations in advance, ma'am. Now I cordially request you to take the online dais and please address all of us with your uh, address for today. Thank you, ma'am. मैम वॉइस नहीं आ रही। थैंक यू कीर्ति मैम, आपने जो कुछ मेरे लिए कहा इट्स टू मच फॉर मी, आई डोंट डिजर्व सो मैनी थिंग्स यू हैव स्पोकन हियर, बट मैं ये चाहती हूँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर नया करना चाहती हूँ, ये बिल्कुल सही है। आज का ये कार्यक्रम जो कि नेशनल वेबिनार के रूप में है, गांधी जी के दर्शन और विचारों का वर्तमान में प्रासंगिकता, जिसमें जिसको मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विजय श्रीवास्तव गांधीवादी विचारक हैं, जो कि एलपीयू यूनिवर्सिटी से हैं, और इस सेमिनार के चीफ पैटर्न प्रोफेसर पी के पाठक जी, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, डायनामिक पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर शरण सर, डॉक्टर दीपक कुमार पांडे जी, डायनामिक पर्सनालिटी इन हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी, कन्वीनर फ्रॉम माय कॉलेज, एंड अदर पार्टिसिपेंट्स। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपका स्वागत भी करती हूँ, और आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे को इनवाइट किया है इस कार्य के लिए। और इसका पूरा श्रेय डॉक्टर शैलेन कुमार जी के पास जाता है, जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया और फिर नेकी
मैम ये करना है, आप इसमें आप आएंगी इसमें। मैंने कहा यस, इतना नेक कार्य है और इतना अच्छा कार्य है, एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आई विल डेफिनेटली विल बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम। आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी यूजफुल एंड रिलेवेंट। मुख्य वक्त जो महात्मा गांधी जी के विचार, भले वो आजादी से पहले से हमारे साथ हमारे देश की आजादी में लगे हुए थे, किंतु उनके विचार, उनका दर्शन, उनका अर्थशास्त्र, उनके आर्थिक विचार आज भी बल्कि पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, रिलेवेंट हो गए हैं। चाहे हम देखें तो वैश्विक स्तर पे जो व्याप्त हिंसा है, मतभेद है, बेरोजगारी, महंगाई, या विभिन्न देशों में आपसी जो आपस में वैर भाव चल रहा है, अफगानिस्तान, तालिबान इत्यादि सारी चीजों में आप देखिए, इवन कोविड-19 के समय भी जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, या जिन लोगों का आर्थिक स्तर बहुत ही आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर हो गया अथवा उनकी बेरोजगारी उनमें फैल गई है, उनके गांधी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनके सारे हम बहुत सारी जो व्याप्त समाज में और विश्व में व्याप्त बुराइयां हो गई हैं, या फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, उसमें गांधी जी के विचार हमारे सामने एक सॉल्यूशन के रूप में, एक समाधान के रूप में उपस्थित होते हैं। पूरे विश्व को, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल एक तरह से मार्केटिज्म है, बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म है, और इसमें संपूर्ण विश्व एक बाजारवाद की होड़ में लगा हुआ है, और जिसमें लालच एक बहुत उसका जो आउटकम निकल के आ रहा है, लालच इतना अधिक बढ़ गया है कि वो युद्ध तक चला जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक वॉर हो या पॉलिटिकल वॉर हो, वहां तक पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी के विचार पहले से अधिक प्रासंगिक हो गए हैं, और उनके विचारों से हम बहुत प्रेरणा पाते हैं। उनके विचार भारतीय दर्शन पर आधारित है। भारतीय दर्शन एक ऐसा दर्शन जो कि हमको सही मार्ग हमारे लिए प्रस्तुत करता है, जिसपे हमें चलना चाहिए, उनके सिद्धांतों को हमें अपनाना चाहिए। समाज में कल्याणवादी आदर्शों के स्थान पर आज कौन प्लेस ले रहा है, कौन आ रहा है, असत्य आ रहा है, अवसरवाद आ रहा है, और धोखा, चालाकी, लालच, किस तरह से किसकी इंसल्ट की जाए, या स्वार्थपरता जैसे गुण आते चले, दुर्गुण उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, तो उन सबका एकमात्र इलाज गांधीवादी दर्शन है। अगर हम उनको लेके चलें तो उन्होंने कई ऐसे सिद्धांत हमारे सामने रखे हैं, जैसे कि उनके जो विचार और दर्शन है, प्रमुख रूप से स्वदेशी, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय, स्वदेशी और ट्रस्टीशिप, खादी आदि के विचारों पर आधारित है। ये सारे ही तत्व जो उनके दर्शन के हैं, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे जब हम आजाद हो रहे थे। स्वराज या राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे गांधी जी, ताकि हमारे गांव, हमारे छोटे स्थान, छोटे छोटे क्षेत्र आत्मनिर्भर हो सके, और स्वायत्त ग्राम पंचायतों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण समाज के लिए अंतिम छोर पर भी जो व्यक्ति है, जो गरीब है, वहां तक भी शासन की नीतियां पहुंचे और उसको कुछ ना कुछ लाभ हो, वो व्यक्ति लाभान्वित हो सके, ऐसा गांधी जी चाहते थे। जितने भी गांव यदि भारत के स्वयं ही आत्मनिर्भर हो जाए, तो ये कहा जा सकता है कि भारत भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। और शायद आजकल जो हमारे पीएम है, मोदी जी हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, लगभग उसी विचारधारा पर आधारित है। आर्थिक मामलों में गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, विकेंद्रीकृत व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, जिसमें छोटे, लघु, सूक्ष्म उद्योग धंधे, इनकी स्थापना हो, खादी का प्रचार प्रसार हो, ताकि गांव के लोगों को बहुत बड़ी पूंजी न लगा के कम पूंजी से ही और अपने घर में ही वो कुछ ऐसी वस्तुओं को या बहुत छोटी छोटी यूनिट्स स्थापित करके वो अपना जीवन यापन कर सके, और उत्पादन हो देश में, और जीवन यापन के साधन एक व्यक्ति को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को मिले। यानी कि जो धन की इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है, धन की असमानता है, आय की असमानता है, वो
उनके विचार में विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के माध्यम से स्थापित की जा सकती थी। तो इस तरह से उनके विचार आज भी हैं। जब इतना अधिक धन, इतना अधिक समाज में आय की असमानता है, एक व्यक्ति के घर में 4 गाड़ियां खड़ी हुई है, 10 गाड़ियां खड़ी हुई है और एक व्यक्ति के पास एक टाइम का भोजन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो शॉर्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उनको स्थापित करना एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इन दोषों से मुक्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को। गांधी जी यहाँ पे भी उनके विचार यहाँ पे बिल्कुल प्रासंगिक है। गांधी जी का एक बहुत बड़ा आर्थिक विचार था ट्रस्टीशिप, यानी कि न्यास की स्थापना करना, क्योंकि वो देख रहे थे कि बहुत अधिक गरीबी, भुखमरी इत्यादि है समाज में। हम ये नहीं कह सकते आज बिल्कुल नहीं है, इतने 75 साल हम लोगों को स्वतंत्र हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी ये कमियां और ये बुराइयां समाज में हैं। तो वो ये चाहते थे कि कुछ ऐसा एक न्यास, एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाए जहां से इन चीजों को दूर किया जा सके और समाज में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना हो, समाजवादी समाज की स्थापना हो, कोई भी गरीब ना रहे और कोई भी भूखा ना रहे। तो ऐसा उनका विचार था और ये सिद्धांत उन्होंने बहुत पहले से स्थापित कर दिए थे, जो आज भी प्रासंगिक है। स्वदेशी का विचार आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र होता है, इसको अपनाना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाले गांधी जी के विचार आज भी उतने ही अधिक प्रशंसनीय और प्रासंगिक है जितने पहले। गांधीवादी विचारधारा से निकाला जा सकता है, हल प्राप्त किया जा सकता है। मैं धन्यवाद दूंगी डॉक्टर केतकी का, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी डॉक्टर विजय श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया है और उनके विचारों को हम यहाँ सुनेंगे। ओवर टू डॉक्टर केतकी।